Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome all my viewers in the very new episode of Meeting the Intellectuals. Before discussing about today's episode, let me quote Yuval Noah Harari, an Israeli medievalist, military historian, and a public intellectual. He very recently said that in a very 5 years of time, there will be a technology that can make decisions independently and that can create new ideas of its own. They can be very nice, they can be harmful, they can even find a cure for cancer, or they can pave way for the solution of climatic changes. But that can be also a sort of alien invasion. Alien invasion, not in the sense that aliens will come out from the outer space in their spaceships or spacecrafts and will invade our planet Earth. No. These aliens will be born in our sophisticated labs. They will come and try to control our ideas. I am speaking about the buzzword artificial intelligence, that's AI. In this regard, we have come to Islamic University of Science and Technology, Avantipora, to meet a very young and dynamic professor, senior assistant professor Asif Asad, who did his PhD from IIT Roorkee, MCA from Kashmir University, and he has taught many courses including AI, machine learning, deep learning, evolutionary computing, and there's much more to say. At the end of the program, we will display his CV so that the viewers can know about more this young and dynamic professor Asif Asad. Welcome to our show, sir. Thank We you are all very for glad to have you us with our show. So, sir, before proceeding in our program, I would like to give you a brief introduction about your department. Yeah, as I'm introduced that my name is Dr. Asif Asad and I have done my PhD from IIT Roorkee. So we recently established this center here. This is called the Center for Artificial Intelligence. In this center, we are doing multiple things. So first of all, we launched a course called MTech in Artificial Intelligence. And the beauty of this course is because, artificial intelligence is now becoming a buzzword and it's everywhere. So we introduced this course, and not only the CSE students, but this ENC students, civil engineering students, anyone who has done BTech is eligible for this course. For this course. Yeah. Then looking at our budding students, particularly those who have recently passed their 12th, so we thought we should launch a course for them also in this new technology. So we have launched BSc AI course. BSc AI. Yeah, it's a 4-year degree. It's a program. 4-year degree course. Okay. Yeah, and for this program, anyone is eligible, whether he has science background, he has mathematics background, so they are eligible, because we make sure we give them the foundation courses initially, and then they can start these advanced AI. Okay, then they can start advanced. Thank you very much. So I suppose we can start. Sir, please give us an introduction of AI. What is it all about? Yeah, this is something that's difficult to explain. So because the reason is defining artificial intelligence, before defining the artificial intelligence, we have to define what's intelligence. What's intelligence? तो उसमें भी ये मसला है कि देयर इज नॉट वन कंसाइज डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. हाँ, जैसे कोई आपको कहेगा कि लेट्स अज्यूम कि जिसको जल्दी जल्दी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वी कैन से दैट दिस बॉय इज इंटेलिजेंट. लेकिन एट द सेम टाइम दिस बॉय कैन नॉट स्पीक fluently, or he cannot convince the people. So for some other person, the same boy, he will say no, he's not intelligent. It's relative then. It's relative, yes. And there is no mathematical or concise definition of intelligence. So once we don't have concise definition of intelligence, so we cannot have concise definition of artificial intelligence then. But usually in the books we find the definition like if a machine can think and mimic the way we humans do in terms of intellectual tasks, then we can say that this machine is artificially intelligent. But again, I will again say that since we don't have concise definition of intelligence, so we cannot have concise definition of artificial intelligence. Very good. Sir, इसके regarding बहुत से लोग ये सोचते हैं that it's threat to new jobs. Is it like that? If it's computing if it's computing very fast than humans, we can simply equate, or not exactly equate to human mind or human brain, but on the table, on the ground, it's computing very fast. It can generate music, it can generate anything which we see nowadays. Is it really a threat for jobs? Yeah, definitely it is threat for jobs. तो मैं यूजुअली जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूजुअली मैं एग्जांपल देता हूँ ट्रैक्टर्स की. तो जब ट्रैक्टर्स आ गए
तो आप भी शायद विलेज लाइफ में देखा होगा बिल्कुल कि सर, हमारे पास जो है लाइक वी यूज इट टू हैव प्लॉस एंड वही ये काम करते वही ये काम ठीक है करते एंड थे। दे वर द मोस्ट रेस्पेक्टेड पीपल इन द विलेज कश्मीरी दान दान 10 लाख, बिल्कुल। मगर एम्पतन जब ट्रैक्टर्स आ गए तो दे गॉट रिप्लेस्ड They got replaced. जैसे टांगा got replaced by sumos and vehicles. एंड पीपल विल बी रिप्लेस्ड People will be replaced. ऐसे ही जैसे उसके बाद जब से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स आ गए तो जो हमारे अकाउंटेंट्स वगैरह थे वो बहुत बहुत हद तक कम हो गए रिप्लेस हो गए। अगर आपने देखा होगा कि बैंक में 10-20 क्लर्क होते थे, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, जो आपके एंट्रीज करते थे इन द पासबुक्स एंड अदर स्टफ, तो दैट गॉट रिप्लेस्ड, दैट्स नाउ डन बाय कंप्यूटर्स। सो इन द सेम वे many jobs will be replaced, but at the same time there will come new opportunities। जैसे कंप्यूटर के आने से एक इंडस्ट्री ही एक revolutionize हो गई सारी चीजें, So बिल्कुल। in the same way this new technology is also going to revolutionize the things and you will have different jobs unheard of जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो हर एक टेक्नोलॉजी के साथ है और दैट्स ट्रू फॉर दिस टेक्नोलॉजी। सो वी कैन नॉट से दैट कि जॉब्स नहीं रहेंगी, जॉब्स नहीं आ जाएगी, जॉब रोल्स चेंज हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, कुछ साल क्या कुछ महीने पहले हम कहते थे कि अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोग्रामर्स आर इरिप्लेसेबल। प्रोग्रामिंग जॉब वाज कंसिडर्ड बिकॉज उसके लिए बहुत इंटेलेक्ट चाहिए, अच्छा इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, वही अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो दिस वाज द स्टोरी जस्ट 4-5 months बैक। 4-5 months back, so very recent, yes। तो दिस वाज कंसिडर्ड अ व्हाइट कॉलर जॉब, बहुत पैसा है इसमें और irreplaceable। बट नाउ द थिंग इज कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई जैसे चैट जीपीटी, डेली वगैरह, तो नाउ दे कैन आल्सो जनरेट प्रोग्राम्स। तो इन अ वे प्रोग्रामर्स अभी तो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुए, लेकिन जहां पे कंपनी में 20 प्रोग्रामर्स की जरूरत होगी, दो ही वो काम कर सकते हैं। तो इन अ वे job replacement तो हो जाएगा, but new jobs will also be there. New jobs will also be there. So one more question is, sir, please elaborate something about generative AI. We have heard a lot about the generative AI, that it can actually create new contents like text, images, even music. How does it work actually, and what's it? Yeah, this is very interesting. आज से पहले जो AI था 2-3 साल पहले, वो यूजुअली क्या काम करता था, that will do the things like क्लासिफिकेशन उसको हम कहते थे। से फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफ अगर है, ये क्या आदमी है क्या औरत है, आदमी है क्या औरत है, या ऐसे कि डॉग है कि कैट है। सो दिस वाज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो कन्वेंशनल एआई विल डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन ये सुपरफिशियल लगता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी बहुत बड़ा काम था। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ से मुझे रिकॉग्नाइज करना था कि ये इस कार का नंबर क्या है, तो उससे क्या फायदा होगा, यू कैन इंस्टॉल दीज कैमरास, सीसीटीवी कैमरास ऑन द रोड्स, और अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है, कुछ करता है, उसका चालान ऑनलाइन हो जाएगा। और नॉट ओनली दैट, से फॉर एग्जांपल जब आपका रेडियोलॉजिस्ट आपका सीटी या एमआरआई देखता है, तो वो क्या कहता है एट द एंड, वो कहेगा कि भाई ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो दिस इज अगेन क्लासिफिकेशन। वो कह रहा है कि ए डिजीज है कि बी है, या डिजीज नहीं है कि नॉर्मल है। तो you can imagine this technology has the potential to replace these radiologists or pathologists by just so it's trying to knock every field, by just trying to tell us whether this is class A or class B, and इससे भी बहुत सारे काम हो जाते और आसान भी हो जाएंगे। But this is what AI used to do। लेकिन अब जो आ गया है, this is generative AI जो आपने बात की। तो this is a new world। जनरेटिव एआई में क्या होता है कि कंप्यूटर या एल्गोरिदम ही आपके लिए नई चीजें जनरेट करता है, ठीक है। ये नई चीज अब क्या हो सकती है, ये आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, ये आपके छोटे बच्चे के लिए डकाउ अगर उसको ऐसे लिखना वो हो सकता है, ये एक ड्राफ्ट हो सकता है कंट्री के लिए, लाइक व्हाट शुड बी देयर आईटी पॉलिसी और व्हाट शुड बी देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, इट कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम दैट। सो यू कैन इमेजिन कि इसका पोटेंशियल कितना है। और फॉर द फैशन इंडस्ट्री आपको बता सकता है कि जैसे किस टाइप के ड्रेसेस डिजाइन करने हैं,
रिसेंटली मुझे याद आ रहा है, हमने एक इंटेलेक्चुअल को बुलाया था, आई थिंक शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, या एंड शी वाज वर्किंग इन आर्किटेक्ट इंडस्ट्री एंड शी वाज यूजिंग एआई, तो उसका लेक्चर था यहाँ पे। और फिर उसने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि वी आर डिजाइनिंग जैकेट्स यूजिंग डेली, कि कौन सा जैकेट चलेगा, बहुत ही स्टाइलिश है। नॉट ओनली दैट, कि अगर एंटीक आपने फर्नीचर बनाना है, कुर्सियां डिजाइन करनी है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इट्स एंटरिंग इन, यू नो, नेम अ डोमेन एंड इट्स देयर, ठीक है। और मेडिसिन में खुद मैं मतलब अपनी लैब के बारे में बताना चाहूंगा कि व्हाट वी डू हियर यूजिंग जनरेटिव एआई और यूजिंग द कन्वेंशनल एआई। हम यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अगर एमआरआई है तो इसमें क्या कोई ट्यूमर है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, तो वो नरेशन भी देता है कि मुझे, मैं एआई एल्गोरिथम आपको कहता है कि मैं इसमें, मुझे लगता है इसमें ट्यूमर है, दिस इज द रीजन, ठीक है, मुझे ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं वहां पे। तो ये चीजें जो है ये जन एआई से ही पॉसिबल है, जिसको आप जनरेटिव एआई कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ने जा रहा हूं कि व्हेन वी स्पीक ऑफ मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्किंग, जैसे हमें पता है देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन अवर ब्रेन व्हिच फॉर्म न्यूरल नेटवर्किंग एंड देन दे डू डिफरेंट जॉब्स। तो व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल न्यूरल कनेक्शंस? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली जितना भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आपकी दिख रही है, चाहे आपका चैट जीपीटी है, चाहे आपका डेली है, या चाहे आपके फ़ोन में कोई भी जैसे स्नैपचैट पर जो फिल्टर्स होते हैं, ऑल दीज आर एआई एप्लीकेशंस। और जितना भी आजकल एआई एप्लीकेशन होती है, एट द कोर ऑफ इट देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन। उसका मॉडल दिया गया था 1950s में। 1950s में उसका मॉडल था, मैथमेटिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल क्या था, सिंपल सा, जो आपका न्यूरॉन होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, दैट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड, उसका सिंपल सा हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया। आई वोंट गो इनटू द डिटेल, अदरवाइज इट विल बिकम टेक्निकल। तो मैथमेटिकल एक फंक्शन उसका बना दिया। और जितनी भी आजकल आपका एआई हो रहा है, एट द कोर ऑफ इट वही, मतलब इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरॉन, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बन गया। और अब यही नॉट ओनली मिलियंस, बिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, वी ट्रेन देम, ठीक है, आर्टिफिशियली। हाँ, एट द कोर इट इज जस्ट अ प्रोग्राम जहाँ पे वेट्स वगैरह कुछ बयास चेंज होता है, बट एट द कोर ऑफ इट वही आइडिया कि आपका न्यूरॉन कैसे काम करता है। जैसे आपने बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कि न्यूरॉन में वो डेंड्राइट्स होते हैं, फिर जो साइड के न्यूरॉन है, दे गिव सिग्नल टू द न्यूरॉन, एंड इफ दिस सिग्नल इज ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड, इट सेंड्स इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये कहानी आपने भी सुनी होगी, 8th-9th में हम लोग पढ़ते थे। तो वही मॉडल अब आजकल जितने भी एआई एप्लीकेशन है, उनमें एट द कोर ऑफ देम मिलियंस ऑफ सच न्यूरॉन्स doing the same thing. If the signal is greater than some threshold, send it to another neuron. It will be passed to another neuron. And इसी को computationally हमने मॉडल किया हुआ, and today we see applications like ChatGPT, Delhi, or whatnot. And there I can find one commonality is between these exchanging of signals, that in case of our brain, that's the biological neurons, they exchange the signals via electromagnetic radiations. And that's exactly what is also happening in artificial intelligence. The transmission is also via electromagnetic energy, that's electromagnetic waves. One more thing which I want to say is that Roger Penrose, a great mathematician, he is still living, contemporary mathematician and a physicist, he once said that even if you are able to mimic the human consciousness, it cannot be exactly, you cannot exactly create the human consciousness. It's his view in case of AI or in case of artificial intelligence. And I will once again quote Yuval Noah Harari. He once said that it can become dangerous because it is capable of making independent decisions. Once a time will come that this tool will not be in your hands. आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसके बारे में? क्या ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए कभी थ्रेट भी हो सकता है? देखो, पहले युवल नोआ हरारी इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ द सेंचुरी, एंड आई आल्सो अप्रिशिएट हिम। मैं भी उसका पढ़ता हूँ, उसकी बुक्स वगैरह मैं भी फॉलो करता हूँ। तो ही इज अ ग्रेट माइंड। लेकिन जो उसकी प्रिडिक्शंस हैं, मुझे नहीं लगता है कि like we are even close to that yet. Like it's a threat. It's in infancy stage. Yes, very infancy. तो मैं ऐसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। लेट्स अज्यूम कि चींटी है, कोई छोटी सी चींटी, और हम कहेंगे कि भाई यार, इस चींटी को अगर हम हाथी का ताकत दें, ठीक है, तो ये बवाल मचा सकती है।
और फिर अगर हम एज्यूम करें, अब अगर हम इसको हमने 1 लाख हाथी का ताकत दिया, अच्छा, तो ये क्या कर ये सकती तो है? क्या कर सकते हैं, एंड देन वी कैन क्रिएट स्टोरीज बेस्ड ऑन दिस assumption कि क्या क्या हो सकता तो इमेजिनेशन हमें कहीं भी जा कहीं सकते पर हैं। भी जा सकता है, बट at the core of our argument, the assumption that it has to grow and get the power of, let's say, 1000 elephants, so ये assumption ही अभी मतलब it's not even near to that. Even near to that. तो Even इसकी near. possibility बहुत Possibility बहुत अभी बहुत नहीं बहुत है. कम। Maybe after hundreds of years, and maybe if the things get growing like this, maybe it happens, or maybe it stops. Maybe after 8-10 years it reaches its peak, and then it can start stop here, declining. and it बिल्कुल। won't capture anything, or it won't become more smart. So Okay. we don't know, but at this stage we are at very infancy. अच्छा, तो ये कब्ल वक्त कहना होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कब्ल वक्त कब्ल कहना होगा। होगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा सा डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में बताइए, क्या चीज होती है ये? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। देखिए जी, पहले जब कंप्यूटर्स नाउ आर अराउंड फ्रॉम 1950s, isn't it? और कंप्यूटर में जैसे आपने भी सुना होगा कि कंप्यूटर्स कैन डू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल। और हमारा कैलकुलेटर भी, जैसे हमने बड़े 2 नंबर्स लिए, उनका मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 7 8 9 8 9 10, उनको मल्टीप्लाई करो और इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको रिजल्ट आता है। तो तब हम लेकिन ना कैलकुलेटर को ही ना कंप्यूटर को ही इंटेलिजेंट कहते हैं। तो इंटेलिजेंस आप किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो पहले जो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रूट करता था, जो भी करता था आपका कंप्यूटर या कैलकुलेटर, तो देयर आर प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम्स फॉर दैट। ठीक है, वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, ये स्टेप बाय स्टेप उनको एग्जीक्यूट करता था एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट। तो अपने हिसाब से कुछ नहीं करता। ठीक है, तो एक मशहूर कहावत है कि एक बंदे ने कहा रोबोट से, ठीक है, मेरे लिए टिकट बुक करो। ठीक है, रोबोट गया, टिकट बुक की, लेकिन वापस नहीं आया। वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि बंदे ने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि टिकट लेकर वापस आना है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स वर सो डम दैट दे वोंट इवन, ये तो ट्रिवियल था ना, अदरवाइज इट वाज ट्रिवियल कि यार टिकट का करेगा क्या जब तक ना वहां पहुंचेगा, तो दे वोंट डू इट। ठीक है, लेकिन आजकल जो लर्निंग हो रही है, दैट्स व्हाट वी डू कॉल, तो जो भी कंप्यूटर करता था प्रिसाइजली हमें उसको बोलना होता था, भाई ऐसे करना, कमांड्स प्रिसाइज होनी थी, और तभी ये इनको एग्जीक्यूट करता, खुद से ये कुछ नहीं करता। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है डेटा ड्रिवन लर्निंग। ठीक है, जिसमें ये आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब आ रहा है। तो हम कंप्यूटर को नहीं कहेंगे कि कैसे कैसे आपने करना है। अगर यही बुकिंग टिकट की एग्जांपल दूंगा, मैं इसको एग्जांपल दूंगा कि 1000 बंदों ने ये किया, टिकट में डेटा उसको दूंगा, 1000 बंदे हैं, कैसे उन्होंने टिकट किया, वो काउंटर पे गए, टिकट किया, वापस लाया, तो ये खुद ब खुद जनरेट करेगा वहां से। अच्छा, जब टिकट बुक करना होता है तो फिर वापस भी आना होता है, इसको वही कह रहा है। बिल्कुल। तो एंड दिस इज व्हाट AI is. This is what AI is. So we don't precisely program the computer to do the things. Rather, what we do is we just give it data and then we give it some mathematical algorithms. ठीक है, यहाँ भी मैथ का ही चलता है। And then this mathematical algorithm figures itself कि क्या करना है, कैसे करना है, and once it learns that, then we feed it the data and it gives us the results. It gives us the result. Very good. तो फिर इसके बाद आपने कहा था अपने डीप लर्निंग की बात की थी। अब पहले आया, जब ये AI का जमाना आ गया, पहले आ गई मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते थे, वी कॉल समथिंग कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन ये होता था कि से फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि एक्सरे या सीटी में लंग कैंसर है क्या। तो पहले दिस वाज अ स्टैनफोर्ड प्रोजेक्ट, दे स्टार्टेड इन 1980s। तो अब कंप्यूटर को समझाना है कि से फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप का पैटर्न है, इस टाइप का नोड्यूल है, सर्कल्स आपको दिख रहा है, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? तो आपको क्या प्रेडिक्ट करना है। लेकिन ये कंप्यूटर को समझाना, क्योंकि ये हमें ही उसको समझाना था कि अगर सर्कल जैसा पैटर्न है, ठीक है, सर्कल के लिए अच्छी सी फॉर्मूला है, y = x² + z², जो भी, लेकिन वो पूरा सर्कल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने भी देखा होगा कहीं सी टाइप, तो वो सर्कल टाइप होता है, और ये सर्कल टाइप बताना ये बहुत मुश्किल था कंप्यूटर को समझाना। तो ये आता था मशीन लर्निंग, यानी आप फीचर बताते थे कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर लर्न करता। जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट की बात की कि
lung cancer project. It was by Stanford, but ultimately it failed. They put millions of dollars into it, लेकिन नहीं कर पाए. लेकिन फिर उसके बाद आ गया डीप लर्निंग का ज़माना. ठीक है, तो इस बार का नोबेल प्राइज जिसको फिजिक्स में दिया गया, तो ही इज़ द पायनियर फॉर इट, डीप लर्निंग का. हाँ, तो व्हाट वी डू इन डीप लर्निंग, वी डोंट गिव दीज फीचर्स. हम उसको कहते हैं कि आप खुद ही फीचर्स भी देख लो. और वो फीचर्स कैसे देखता है? अगेन वी गिव हिम सम मैथमेटिकल फंक्शन एंड ही लर्न्स दीज मैथमेटिकल फंक्शन. एंड what happens after that is that it's able to do such type of tasks. तो आजकल जो डीप लर्निंग से होता है, जो बीटेक का बच्चा या इवन 12th का बच्चा करेगा, अगर 3 महीने का कोर्स करेगा, तो वो मशीन लर्निंग का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट नहीं कर पाता वो. तो इतना पावरफुल है ये टूल डीप लर्निंग. और इसके बाद जो जितने भी आप फिर चाहे चैट जीपीटी देखो, चाहे कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल देख लो, तो दे वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग इंटरनली. लेकिन पहले यूजुअली हम इमेजेस पे काम करते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट से भी काम करते हैं. अच्छा, ठीक. तो डीप फेक्स एक अलग चीज है, ये थोड़ी सी खतरे की घंटी भी बजाता है. कभी कभी आपका ऑडियो लेकर अगर बंदा मर भी गया हो तो उससे आपकी वॉइस जनरेट करता है, या वीडियो में भी ऑल्ट्रेशंस होती है, ये भी सारा यही एआई करता है. हाँ, ये भी डीप लर्निंग की एक एप्लीकेशन. अच्छा, ये भी डीप लर्निंग की एप्लीकेशन है. हाँ, तो डीप फेक में हम लोग क्या करते हैं, या जो डीप फेक का यूज करते हैं, तो फेक बंदे को लाइफ दी जाती है. से फॉर एग्जांपल कोई भी प्रेसिडेंट है, तो उसकी इमेज लेके ऐसा वीडियो बनाएंगे कि हमें 100% लगेगा कि वही बोल रहा है. आपने भी देखे होंगे कुछ वीडियोस जहाँ पे अंबानीज वगैरह वो कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, एंड पीपल लिटरली इन्वेस्ट. हाँ, उनको लगता है बिल्कुल ये अंबानी ही बोल रहा है या नारायण मूर्ति बोल रहा है. सो दे इवन आज तक की क्लिप्स लोग चढ़ा रहे हैं. दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ डीप फेक. तो देयर आर सम एल्गोरिथम्स दैट डू इट. बहुत आसान है. जैसे अगर जो हमारे बच्चे भी है, दे इफ यू गिव देम ऑडियो ऑफ सम पर्सन, वीडियो ऑफ सम पर्सन, एंड दे कैन क्रिएट अ फेक यूजिंग दीज. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके फिर एथिकल कंसर्न्स क्या बनते हैं? हाँ, एथिकल कंसर्न्स देखो, जैसे हर एक टेक्नोलॉजी में है, वैसे इस टेक्नोलॉजी में भी है. एथिकल कंसर्न्स आर देयर. से फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रग्स की बात करें, जो मेडिसिन की बात करें, तो वहां पे भी एथिकल कंसर्न्स है, वहाँ यहाँ पे भी एथिकल कंसर्न्स. यहाँ के एथिकल कंसर्न्स लेकिन थोड़े से डिफरेंट है. तो एथिकल कंसर्न्स यही है. से फॉर एग्जांपल डीप फेक अगर कोई बना रहा है, तो उसके साथ कैसे डील किया जाए. ठीक है, तो नए कानून आपने बनाने. सो नॉट ओनली दैट, लाइक नाउ द ऑटोनॉमस ड्राइविंग व्हीकल्स, दे आर नाउ बिकमिंग अ रियलिटी. तो अब आपने सोचना है कि ठीक है, अगर ऑटोनॉमस ड्राइविंग व्हीकल है, खुद से गाड़ी चल रही है, और उसने एक्सीडेंट किया, तो हु यू शुड ब्लेम? क्योंकि ड्राइवर तो बेचारा चला ही नहीं रहा. बिल्कुल. क्या आपको कंपनी को ब्लेम करना है? तो ये यानी अब आपका कानून भी चेंज होगा. आज इस हिसाब से नई नई चीजें सामने आनी है, डेफिनेटली आनी है. तो आपका कानून भी अपडेट होगा, तो आपके एथिक्स कंसिडरेशंस भी चेंज करने हैं. ठीक है, तो और नॉट ओनली दैट, इससे बड़े चैलेंजेस भी है, एथिकल कंसर्न्स है. तो द वे एआई इज गोइंग, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल बी डन बाय रोबोट्स. बिल्कुल. यहां तक कहा जाता है कि इवन टीचर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल रोबोट्स. डॉक्टर्स, हाँ, डॉक्टर्स रिप्लेस हो रहे. हमने पिछले साल जीएमसी में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी ऑन रोल ऑफ एआई इन मेडिसिन. तो वहां पे हम बार बार कह रहे थे, देयर वर पीपल वर फ्रॉम डेनमार्क आल्सो, some of the collaborators from IUST, from GMC, from हर जगह से. तो हम लोग भी बार बार कह रहे थे एज ए एक्सपर्ट्स कि नहीं जी, आपके जो मे बी रेडियोलॉजिस्ट्स विल बी रिप्लेस्ड in a couple of years, or maybe they will be augmented. Majority of the decisions will be taken by AI algorithms. लेकिन कम से कम सर्जन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता. लेकिन आजकल ये स्टोरी है कि नए ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मसला था कि हाउ विल ट्रेन रोबोट टू से कि ऐसे सर्जरी करनी, और वो भी प्रिसाइसली. और यहाँ पे अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो बंदा खत्म. तो क्या हो रहा है कि आजकल रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हैं यूजिंग द वीडियोस ऑफ द सर्जरीज. ठीक, उनको वीडियोस दिखा रहे हैं. ठीक है, अंदर से उनके एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं,
and they are able to perform surgeries Surgeries. also. तो ऐसी कुछ सक्सेसफुल सर्जरीज हो गई है, रोबोटिक रोबोटिक सर्जरीज। सर्जरी, लेकिन उनमें फर्क था। जो हम 80 से सुन रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज, लेकिन वहां पे फर्क ये था कि वहां कंट्रोल में बंदा था, अच्छा, जो पीछे हैंडल कर रहा डॉक्टर था। उसको हैंडल कर रहा था। देन दिस रोबोट वाज गिविंग हिम प्रिसाइज मूवमेंट्स, लेट्स अज्यूम उसको 1 मिलीमीटर ही मूव करना है, ठीक है, तो वो कट करना ह्यूमन के लिए मुश्किल था। तो लेकिन रोबोट को इंस्ट्रक्ट बंदा ही करता था। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली होगा, इंडिपेंडेंटली हो रहा है। अच्छा, रोबोट को सिर्फ कहना है कि यार सर्जरी करो, और मे बी अगर वो रेडियोलॉजिस्ट भी खुद ही है, बिकॉज ही कैन हैव वन एल्गोरिथम एज रेडियोलॉजिस्ट, वो खुद फिगर आउट करेगा कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पर सर्जरी मुझे क्या करना है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम डीप फेक की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि एक वीडियो होगा, उसमें ऑडियो भी जनरेटेड होगी, वीडियो भी जनरेटेड होगा, तो क्या उसका एक काउंटर सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट कर सकता है कि ये रियल वीडियो है और ये नकली है? हाँ, there are counter softwares for everything, ठीक है। अच्छा। The way we have created deepfake, the way people have also created, these softwares that can detect whether That it's can AI detect. generated or not. Not only for this deepfake, for the text also. Say for example, you take any this large language model and you generate the text from that. So there are many softwares that test whether it's AI generated or human generated. But that being said, बंदा अब ये नहीं है कि देखो आप रील्स देख रहे हैं एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन यू, या ठीक है हम लोग तो मैच्योर हैं, खासकर छोटे बच्चे, टीनेजर्स, तो वो रील्स देख रहे हैं, दैट इफेक्ट्स देयर माइंड, उनमें से उनको लगता है कि सच है, ठीक है। तो अब बंदा तो रील देख देख के नहीं कहेगा ना कि यार ये डीप फेक ने जनरेट किया है या ओरिजिनल वीडियो है। इट हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो रहे हैं, डीप फेक ने कोई वीडियो जनरेट किया, तो 99% ऑफ पॉपुलेशन वोंट बॉदर टू चेक कि ये सही है, बिल्कुल। तो उस वजह से अपना डैमेज तो ये करता है, इवन इफ देयर इज टेक्नोलॉजी टू स्टॉप इट, लेकिन इट विल डू इट्स। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या कंसर्न होगा एआई या हेल्पफुल होगा? हाँ, साइबर सिक्योरिटी के लिए दोनों चीजें हैं। देखो, पहले हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसे एल्गोरिथम्स बना सकते हैं दैट कैन टेक सच लेवल ऑफ डिटेल कि आपके सिस्टम सिक्योर बनेंगे, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी पीपल हु विल काउंटरफिट देम, ठीक है, हु विल ट्रेन अदर सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स, अच्छा, और उनको क्रैक करने तो ये साइनोसोडियल वेव की तरह हाँ, चलता रहेगा। चल, थैंक यू वेरी मच। अदर सिस्टम विल ट्राई टू टेक ओवर द प्रीवियस वन। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये काफी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन थी। होपफुली वी विल मीट यू इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट मीटिंग, तो कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।